2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले 11 दोषियों में से एक को गुजरात में एक सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी के एक सांसद और विधायक के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया। वो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। दोषियों में से एक शैलेश भट्ट ने भाजपा के दाहोद सांसद के साथ ये मंच साझा किया। It's extremely unfortunate. The fact that an elected representative decides to share a stage with someone who's been convicted of such a heinous offense and then released prematurely while other people continue to languish in jail is something which is reprehensible, and it should be condemned in the strongest possible terms. Joined by Harsimrat Kaur Badal over here with me. Ma'am, you know, we did see how it is the rapist of Bilkis Bano who was seen sharing stage with BJP MP and the BJP MLA. What does it go on to say when they talk about Beti Padhao, Beti Bachao and justice for women when the rapists are seen openly sharing stage with the lawmakers? I think it's totally shameful. I'm at a loss of words what to say. I thought it couldn't get worse when I heard BJP say that these are sanskari people. First of all, to call a rapist sanskari. On the other hand, after they're out to put them on stage with MPs and MLAs and allow such a person to sit next to you, I think shows the double speak of BJP, where they talk about women empowerment, they talk about Beti Ka Samman. But if this is the way to do Beti Ka Samman, then it's clear that it is nothing more than just mere words and sloganeering. And actually, the proof of the pudding lies in its eating, where you're putting them on stage and calling them sanskari. So it's shameful. Ma'am, do you think the remission that has been given to the rapist, that should be recalled, because the matter challenging the remission given to the rapist of Bilkis Bano is going to be coming up in the court? 100%. I think there should be a law that no rapist can get out before he completes his term. You're sending a wrong message to the women, to 50% of the voters of this country, as well as to the security of women. This is the worst thing that you can do when rapists get remission. This picture of convicts of Bilkis case suddenly appearing on the stage as though the convicts who are the beneficiaries of premature release are having full blessings and protections of BJP. Now, whilst the matter is under examination by the Honorable Supreme Court, this kind of exposure is only an indication of an unsuccessful attempt on the part of BJP to influence administration of justice. तो बिल्किस बानो केस में आपको बता दें, जिन दोषियों को रिहा कर दिया गया था उसके खिलाफ, उनकी रिहाई के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस याचिका पर भी आज सुनवाई होने वाली है। और उसी बीच आपको बता दें, गुजरात से जो तस्वीरें सामने आई, दोनों ही विरोधाभास तस्वीरें हैं। एक तरफ पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, अदालत के अधीन है, दूसरी तरफ खुलेआम किस तरीके से सांसद और विधायक के साथ मंच साझा करते हुए उसमें से एक कन्विक्ट को साफ तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि 11 की रिहाई हो चुकी है कोर्ट द्वारा, आपको बता दें। और उसी रिहाई में जो जल्दी रिहाई की गई थी, समय से पहले ही इन 11 लोगों की रिहाई कर दी गई थी बिल्किस बानो गैंग रेप मामले में, उसमें उसी के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दूसरी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो बीजेपी के सांसद हैं और विधायक, एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था। आपको बता दें, आश्चर्यजनक बात यह है कि एक सरकारी कार्यक्रम में उस शख्स के साथ सांसद और विधायक का मंच साझा करना, शायद इसकी वजह से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं और सवालों के घेरे में है जो बीजेपी के विधायक हैं और सांसद हैं जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे, क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम था। ऐसे में किस बिना पर उस शख्स को उस स्टेज पर लाया गया, उसके साथ मंच साझा किया गया, जब पूरा मामला, सभी जानते हैं कि पूरा मामला कोर्ट के अधीन है। ऐसे में आज कोर्ट में अहम सुनवाई भी है इन 11 के रिहाई के खिलाफ जो याचिका दाखिल की
गई है, उसी पर सुनवाई भी है और उसके मध्य में इस तरीके की तस्वीरों का आना निश्चित तौर पर विपक्ष को एक और पक्ष देता है कि सरकार पर वो हमलावर हों। और शायद इसी वजह से विपक्ष लगातार, आपको बता दें कि ये जो तस्वीर सामने आई, जो विजुअल सामने आए, उसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर दिखी कि क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तमाम ऐसे जो स्लोगन्स हैं सरकार द्वारा, उसका हवाला देते हुए जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी नेता हैं, वो बीजेपी पर हमलावर दिखे। तो ये तस्वीरें आपको बता दें जो इस वक्त मुख्य केंद्र बना हुआ है। आज इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जो रिहाई के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो हैं वो निश्चित तौर पर विवादों के घेरे में हैं। और चलिए जल्दी से ये सुन लेते हैं रंजीत रंजन का क्या कुछ कहना है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिल्किस बानो केस हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे भी अगर रेपिस्ट है, नो प्रॉब्लम, अगर वो भाजपा का व्यक्ति है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से बिल्किस बानो केस में बेल हुई, उसके बाद मिठाइयाँ बांटी गई, एक तरफ प्लेन से उतार कर एक शब्द बोलने के लिए आप लोगों को जेल भेजते हैं, आप घोटाले की बात करने के लिए राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करते हैं और रेपिस्ट नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पार्टी के लोग। तो देखिए इसके पीछे किस तरीके से राहुल गांधी पर जो बड़ा एक्शन लिया गया उसका हवाला भी विपक्ष द्वारा यहां पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसको लेकर भी बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है यहां पर विपक्ष कि राहुल गांधी के एक बयान को लेकर उन पर दोष मढ़ दिया गया, मामला कोर्ट में चला गया, उन्हें दोषी करार दिया गया, 2 साल की जेल की सजा सुना दी गई, उनकी सदस्यता जो थी लोकसभा की वो सदस्यता रद्द कर दी गई, डिस्क्वालीफाइड हो गए, अयोग्य सांसद घोषित कर दिए गए हैं। इस बीच जब इतना बड़ा कोई दोष करे, इतना बड़ा जुर्म करे, गैंग रेप करे एक महिला के साथ और उस दोषी के साथ भले ही कोर्ट से उसे रिहाई मिल गई है, लेकिन उसी रिहाई के खिलाफ एक बार आपको फिर से बता दें कि उसी रिहाई के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। और उसके बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं। ये कोई प्राइवेट, आपको बता दें, कोई पर्सनल कार्यक्रम नहीं था, व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक सरकारी कार्यक्रम था जिसके उस मंच पर बीजेपी के सांसद और विधायक देखे गए। उसी में से 11 में से एक शख्स के साथ जिसको लेकर विपक्ष लगातार अब हमलावर दिख रही है।